Write down the heading. Empirical formula. Empirical formula is the formula of a compound, beta, is the formula of the compound which shows which shows the simplest. This is the most important one. The simplest whole number ratio between the atoms of elements in the compound. Between the atoms of elements in the compound. Just copy the next one as well. First is empirical formula. Second is molecular formula. What is this molecular formula? Write down the definition, then I'll explain. It is the chemical formula of the compound This is the chemical formula of the compound, which shows the actual number of atoms of each element in the molecule of the compound. Better do it seriously, okay? Now let's see what does this mean. I'm giving you some examples. When I write the molecular formula of the compound, it has to give the exact number of beta. It has to give the exact number of atoms in the compound. Like hydrogen peroxide is H2O2. H2O2. You know, hydrogen also 2, oxygen also. This is the actual number of atoms in the molecule. But 2 can be cut. So its empirical formula would be empirical formula. HO. Yes, that's right. HO. Is that correct? Its empirical formula would be HO. Let's see. C6H12O6. This is the actual molecular formula. What formula? जो real formula है compound का. Molecular. Actual molecular formula. But if you write the simplest whole number ratio, empirical formula says that CH2O. That's right. CH2O. This is the empirical formula. So empirical formula will always be smaller than what? The actual molecular formula. Let's take benzene, C6H6. What will be the empirical formula? CH. Quickly copy. इसका फायदा क्या भी देखते हैं इसका फायदा भी देखते हैं हर चीज का फायदा देखना है कॉपी करिए बेटा बिल्कुल सही बात है फायदा पता होना चाहिए कॉपी क्विकली then let's see. So we know that we get the empirical formula by dividing all the atoms, number of atoms, by a common number. Common number से divide करा है ना हमने काटा है
काटने के बाद हमको एम्पेरिकल फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म एम्पेरिकल मिलता है। तो अगर एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर लाना है तो कैसे आएगा बताइए? मल्टीप्लाई करके। किसको मल्टीप्लाई करके? उसी कॉमन नंबर को। वो कॉमन नंबर कैसे निकलेगा सोचिए। यहाँ तो दिख रहा है आपको, इसको डिवाइड हमने 2 से करा है, इसको डिवाइड 6 से करा है, इसको डिवाइड 6 से करा है। बट अगर एग्जाम में आपको ये नंबर निकालना हो कि भाई किससे डिवाइड करा के ये आ जाए, तो सोचिए कैसे आएगा। सर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल कर, ठीक है आप थोड़ा आगे चले गए। कैसे आएगा सोचिए। सर हम क्या पहले। कर सकते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल सही। सुनिए, इसका वेट निकालेंगे और इसका वेट निकालेंगे तो इसका वेट दुगना होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालेंगे और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट होगा वो इससे डबल होगा, क्योंकि वही तो 2 बार आ रहे हैं। अब डिवाइड होके आ जाएगा वो। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट निकालें उससे इंपेरिकल को डिवाइड करा दें तो आ जाएगा वो नंबर जो डिवाइड करा है जिसने, नहीं ऐसे में। अगर आप इसका वेट निकालेंगे तो समथिंग आएगा, बट ये उसका 6 टाइम्स आएगा, क्योंकि वहां पे कार्बन 1 बार है, यहाँ पे कार्बन 6 टाइम्स है। गेटिंग बेटा गुरुराज? वहां पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ 12 बार है। ऑक्सीजन 1 बार है, हियर इट इज 6 टाइम्स। ये सुनो, सेम नीचे वाले देखिए, वहां निकालेंगे सी एच का आएगा वेट इंपेरिकल से, मॉलिक्यूलर में निकालेंगे तो 6 C6H6, 6 गुना, 6 टाइम्स आएगा। तो जब आप उन दोनों वेट्स को डिवाइड कराएंगे तो आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। बताइए तो क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं है? अंडरस्टूड? सो राइट डाउन द नेक्स्ट फॉर्मूला। इफ आई वांट टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो I can get it from the empirical formula, but I need to multiply something to this, the number that maybe we divided, and we don't remember it now, but we need to divide by that. Clear? Understood? We'll divide by that. Now, how will we get this n? N would be molecular formula weight upon empirical formula weight. Molecular formula weight upon empirical formula weight. Is this clear? Understood, beta? Molecular formula weight upon empirical formula weight. N आ जाएगा. But we know molecular formula is also what? 2 into vapor density. So in case if molecular formula is not given, we can also find it by vapor density. Formula weight. Go. Now let's start the questions. चलिए. So I'm writing the first question. Check it from here. A compound of carbon, hydrogen, and oxygen. Now you need to learn the table. This is the first question. First, we write down name of the elements. This compound is of what? Carbon, carbon, hydrogen, and oxygen. So this is the first column of our table. Check quickly. This is the first column. Then, what does the question say? Question has given their percentage composition. What is their percentage composition? Can you tell me? Percentage composition. Carbon का कितना है बेटा? 40%. Then second, 6.7%. 53.3%. देखिएगा, फर्स्ट टाइप ये है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। सेकंड ये हो सकता है कि आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना पड़े, और वो मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, उनका नॉर्मल वेट दिया हुआ होगा ग्राम्स में, उससे आ जाएगा। वो बहुत इजी है। अब सुनिएगा हम क्या करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर 40% है कार्बन, सो वी फाइंड राइट द एटॉमिक वेट फर्स्ट। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन? 12, हाइड्रोजन 1, and oxygen 16. Then after this, we find relative number of atoms. Relative number of atoms. मतलब हमने देखा कि भाई अगर 40 है, मान लीजिए, परसेंटेज छोड़िए, हमने मान लीजिए 40 ग्राम है, एक एटम है 12 ग्राम का, तो कितने एटम्स होंगे वो हम निकाल रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? बट ये जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सिंपलेस्ट रेशो में आ रही है। कौन सी रेशो में आ रही है? तो जो फॉर्मूला आने वाला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। अभी देखिएगा सिंपलेस्ट क्यों होगा ये। आप बोल रहे थे कि इंपेरिकल फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है ना? यहाँ पर हम देखेंगे। एंड बिकॉज दिस हियर वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो इवन इफ यू आर नॉट राउंडिंग ऑफ इट इज फाइन। अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम 6.7/1 कितना आएगा बताइए? 70 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 53.3/16 किससे कट कर सकते हैं आप? 4 से। 16 से कर दीजिए। 3 जा 16 5 से कितना होता है? 16 3 जा, सॉरी, 16 3 जा 48, 53 बचा। 3 जा 48, 3 3 आ गए। मान लेते 3 3 है, ठीक है। आप चुनेगा, क्लियर? ठीक है। सो कितना होगा बताइए? 16 3 जा, बट मुझे लगता नहीं है कि राउंडिंग ऑफ होती है केमिस्ट्री में। चलिए कोई बात नहीं। 16 3 जा 48, क्लियर। 48 5 53, फिर वही बना 53। 16 3 जा 48, अब 50 बनेगा, ठीक है। 16 3 जा 48, फिर 20 बनेगा और फिर 1। फिर से करें। 16 3 जा 48, कितना बचा? 5 या 53 हुआ। फिर 16 3 जा 48, फिर 0 आएगा ना, तो 50 बनेगा। फिर 1 तो वही रहेगा राउंड ऑफ, तो ये बनेगा 3.33। और यहाँ पर आएगा आपका 6.70। और यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करने के बाद भी आएगा 3.33। मुझे लगता नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। राउंड ऑफ करेंगे बेटा। स्कूल टीचर्स इफ दे आर सेइंग समथिंग यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ओके? चलिए आ जाइए। सो विल राइट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस एंड देन विल राउंड इट ऑफ। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आ जाइए फिर। अब क्या करेंगे बेटा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए, खत्म हो गए। अब जो इन तीनों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है? स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी वाली। उससे सबको डिवाइड करा देंगे, ठीक है। और उसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। अब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है बेटा, तो इससे जो फॉर्मूला आएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिएगा, 3.33/3.33, छोटा नंबर यही है। 6.70, 3.33, 3.33 जो आया है ये भी डिवाइड हो जाएगा, पक्का। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया। चलिए ठीक है। अब सुनिए, ये तो 1 आ गया, ये वाला 2 भी नहीं आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली नियर टू 2 आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 2। now because it is coming close to 2, 2 आएगा नहीं, वैसे 7 6 होना चाहिए ना। 1 पॉइंट वी कॉल इट 2 ओनली। अब बताइए, यहाँ पे कोई मैथ्स वाली राउंडिंग ऑफ नहीं है। अगर आपके टीचर ने बोला कि यहाँ पर भी करना है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ये पूरा अप्रोक्सीमेशन पे चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस ले जाके राउंड ऑफ करूँ, डजंट मेक सेंस। क्योंकि अगर एक आंसर एग्जैक्ट आए लास्ट में, तब अप्रोक्सीमेशन करना सेंसिबल होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं मैथ्स में, लास्ट तक क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वहां पे बोला जाए कि 4 डेसिमल प्लेसेस, इट मेक सेंस, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। बट यहाँ पर लास्ट में तो हम टोटल अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हैं। तो क्योंकि इतना अप्रोक्सीमेशन इसमें होता है, आप सोचिए अगर ऊपर 3.30 भी होता ना, 33 नहीं होता, और मैं उसको 3.33 से डिवाइड कराता, तब भी मैं मनी लिखता। और क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा अप्रोक्सीमेशन को अवॉइड किया जा रहा है, मतलब 1.96 को हम 2 लिख दे रहे हैं, ऐसा है। तो फिर राउंडिंग ऑफ डजंट मेक सेंस। शुरू में प्रिसाइजली आंसर निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता, जब लास्ट में आके आपको अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर देना है। 1.91 भी आया, उसको भी 2 लिखना है। 1.8 भी आ रहा है, उसको भी 2 लिख देते हैं। सो अगर इतनी हैवी राउंडिंग ऑफ को अवॉइड किया जा रहा है इतना हैवीली, तो वो 3 डेसिमल प्लेसेस को 2 डेसिमल प्लेसेस करने का सेंस बनता नहीं है। समझ रहे ना? कोई बात नहीं। चलिए, इतना क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। बस एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन से आ जाए। चलिए करते हैं। कैसा आएगा? यस, अब पे करता हूँ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? राइट डाउन। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए बेटा, लेट्स सी।
I am writing the empirical formula here. Empirical formula. क्या होता है बताइए empirical formula? C1H2O. Now, how will I write the molecular formula? Question says Weber density is n. I know molecular formula would be bigger than the empirical formula. And how will I get it? I'll get it like I'll write empirical formula and I'll multiply this number to it, n. जो भी डिवाइड हुआ होगा थ्रू आउट उसे मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना? n कैसे आता है बेटा? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, पूरे फॉर्मूले का वेट अपॉन जो सिंपल वाला फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. बहुत इजी है बेटा. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा. हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किससे आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नहीं है तो कैसे निकालेंगे उसको? 2 into VD. एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट एम्पिरिकल फॉर्मूला से आएगा बेटा. बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? CH2O, है ना? एरो लगाइएगा. CH2O तो कार्बन एक बार आ रहा है मतलब 12. H2 है तो 1 into 2. O कितना होता है? 16. ठीक है. How did I get the molecular formula? By 2 into Weber density. How am I getting the empirical formula weight? Empirical formula से. So empirical formula weight आ रहा है, देखिए 2 into Weber density कितना है? 60 दिया है, 30 दिया है, 30. नीचे कितना आएगा बताइए? 12 plus 2 plus 16, 30. 30 कट जाएगा तो जो नंबर n आ रहा है 2 आ रहा है. ये आ रहा है बेटा हमारा CH2O. n हो गया 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, C2H4O2. Understood? This is the basic first question. All of you have to learn this table. Okay? Calculation is also, because there is so much approximation, it is not that difficult. It's easy. Calculation कोई difficult नहीं है. चलिए दूसरा क्वेश्चन टाइप करते हैं बेटा. दूसरा टाइप वो है जिसमें हमें क्या नहीं दिया होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया नहीं होता है और हमें निकालना पड़ता है. और बस ये टाइप हो गया हमारा फिनिश. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ओवर. आई एम टेलिंग यू 1-2 questions are more than enough for this. After this, I'll be teaching you questions based on atomicity. थोड़ा ध्यान दे लीजिए, समझा रहा हूँ. चलिए let's see. C2H4O2, is this clear? Now write down. Next question. Question number 2. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A chemical reaction showed. एक केमिकल रिएक्शन में हमें पता चला है, क्या पता चला है? That 10.47 grams of a compound contains 6.21 grams of material X. Total mass of compound. टोटल मास ऑफ कंपाउंड बताइए कितना है? पूरा मास इस कंपाउंड का. How much? 10.47 grams. Mass of metal X बताइए कितना है? It is given 6.21 grams. And then what will be the mass of non-metal Y? Yes, minus करके आ जाएगा. Question says the rest is non-metal Y. So non-metal Y, non-metal Y would be how much? 10.47 minus 6.21. So it's going to be 4.26 grams. Is this clear to you? Yes or no? Easy? Any doubt? आ गया हमारे पास. अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है. लेट्स सी. आई राइट परसेंटेज ऑफ मेटल एक्स कितना होगा बताइए? 6.21 grams अपॉन टोटल 10.47 grams into 100%. पॉइंट से पॉइंट कट गया, से कट गया. कैलकुलेशन आ रहा है 62100
अपॉन 1047। करा ये डिवाइड, और जैसे डिवाइड करने की बात आएगी आप देखते रहेंगे इसे, एज इफ इट्स गोइंग टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। आपके देखने से सॉल्व हो जाएगा। इट विल कम So can you 1005 explain से it होता है। again? हाँ बेटा, You were not audible. 59। So can you explain it again? You were not audible. Should I explain it again? Okay, check the book. In the question it says एक कंपाउंड है जिसका पूरा वेट इतना है, उसके अंदर मेटल एक्स 2.1 ग्राम्स है। कितना ग्राम्स है मेटल एक्स? 2.1 ग्राम। इतना क्लियर है? अगर कंपाउंड एक्स और वाई का बना Yes. हुआ है, तो जो एक्स होगा वो तो हो गया, जो बचा कुचा होगा वो क्या होगा? वाई। है ना अवनी? Total minus 6. Yes, sir. हाँ, माइनस कर दिया। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन वेट से निकलता है बेटा। एक्स का वेट कितना है? 6.21, और टोटल कितना है? 10.47। कल जो हमने परसेंटेज निकाली थी वो फॉर्मूला में से निकाली थी, Yes. फॉर्मूला का पूरा वेट, उसमें से के का वेट। आज भी वही है, बट फॉर्मूला का वेट ना देकर हमें टोटल कंपाउंड का वेट दिया है। सेंस वही है एकदम से। ठीक है, Thank you, अंडरस्टूड sir. बेटा? ओके। अब 59 देखिए, Yes. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 59.312। ठीक है मैंने से राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59.31%। और सुनिएगा, अगर आपको परसेंटेज ऑफ एक्स निकालनी है, you can calculate it, or you can even do it like 100% minus 59.31। This is also a good idea, क्योंकि अगर पूरा कंपाउंड तो 100% है, उसमें से अगर ये कितनी परसेंट है? 59, तो बची कुछ क्या होगी? वाई। वाई है ना, नॉन मेटल वाई। तो 100 माइनस करा दीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 40.69%। कॉपी क्विकली। So this is the addition. Okay, finding the percentage. This is the addition। 100 में से माइनस कर दिया, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? और करके लिख लीजिए। और यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय दिस। 4.6 है अपॉन टोटल 10.47 है इंटू 100%। ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए, तो क्लियर है? यस सर। कैसे निकलेगा भाई? चलिए आगे बढ़े। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए शुरू हो जाइए। आप क्वेश्चन खुद करिए। एटॉमिक वेट दे रहा हूँ मैं आपको। टेबल बनाइए जल्दी से। ऑल ऑफ यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। डू क्विकली। All right, please do बेटा। I am having some problem with electricity, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है आज। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 90 का। परसेंटेज ऑफ वाई का दूसरा दूसरा मेथड वाले में, परसेंटेज वाई में जो उसकी वैल्यू थी। कितना वेट है वाई का? कितना वेट है वाई का? कितना आया था वेट का वाई? हाँ, वो आया था 4.26 अपॉन 10.47 इंटू 100%। जल्दी से टेबल बनाइए बेटा। ऑल यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, इट्स वेरी बेसिक। इन दिस क्वेश्चन जस्ट हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, नॉट इवन मॉलिक्यूलर। राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग क्विकली। आई एम जस्ट टर्निंग ऑन, इट विल टेक सम टाइम। ऊपर लिखिएगा एलिमेंट, आगे लिखिएगा फिर टेबल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो आपने लिखाना है, फिर लिखिएगा एटॉमिक वेट, फिर आता है क्या बेटा? सिंपल होल नंबर रेशियो। हाँ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। डू इट क्विकली। आंसर शुड बी x/4। ट्राई, 4 टाइम्स जाएगा। मेक अ सेम टेबल, ओके, सेम टेबल एग्जैक्टली। ऊपर नीचे नहीं करेगा बेटा कॉलम्स। जल्दी से करिए, ट्राई क्विकली। परसेंटेज क्या था? एक्स का परसेंटेज आया था हमारा 59.31। लिखा सबने एक्स का? वाई का है 40.69। एक्स का एटॉमिक वेट है बेटा 207। अब वाई का है 35.5। नाउ डिवाइडेड, डिवीजन इज डिफिकल्ट। बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन कराइए 59.31 को 207 से।
It will come as 0.286. कर लीजिए 0.286 आएगा पहले वाले का simplest whole number ratio or relative number of atoms. Sorry. Switching on. Just wait. And then find out the formula. Is this clear to all of you? Easy. So in empirical formula, we basically have only these two type of questions. Then rest are very basic. Very easy, beta. All of you understood this type of question? First one is clear. First question जो किया था बेटा आज. चलिए. Just wait. Oh. So is this question clear, beta? Is this question clear? Please check the table. But you have to learn the steps. We have written the elements, percentage composition, atomic weight, relative number of atoms, simplest whole number ratio, and then we'll get the empirical formula. What will be the empirical formula? X, Y, 4. Very good. All of you have done this on your own? Good. Let's see the next question. Next question is question number 4. Check quickly. It is given that empirical formula of a compound, empirical formula is XY2. Find the molecular formula. For finding the molecular formula, beta, we know molecular formula is going to be what? Empirical formula into N. Yes or no? How do you find this N? This N is molecular formula weight upon empirical formula weight. What is molecular formula weight? 2 into vapor density upon empirical formula weight. Now read the question. Question clearly says that if its empirical formula weight is equal to its vapor density, means instead of empirical formula, I can write what? Vapor density. So vapor density will get cut, N will be 2. So what will be the actual formula then? Yes, it is given as XY2. So actual formula X2Y2. Please remember, this is not the same question. This is the next question. Okay? Unsolved question में भी दिया हुआ है बिल्कुल सही. Same questions आपको मिलेंगे. Now there is one more question where we will have the molecular formula. Question 5. Question is write the molecular formula is given and you have to write down the empirical formula. इसमें ये compound हमेशा आता है. बच्चे पता नहीं क्यों confused होते हैं. Like if you have C5H10, what will be the empirical formula? CH2. But if you have H2CO2, what will be the empirical formula? HCO. No, nothing. They don't have any common factor. So it will remain same. बच्चे 2 कट कर देते हैं. Like if you have H2SO4, यहाँ पे भी बच्चे 2 कट कर देते हैं. जबकि नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फर में कट नहीं हो रहा है. तीनों सारों में कट होना चाहिए. हाँ, सब में से कट होना चाहिए. तीनों में से थ्रू आउट, तभी तो रेशियो आएगा. तीनों में से थ्रू आउट कट होना चाहिए. Is this clear beta to you? Any doubt? No? Very good. Write down. Calculate the empirical formula of a compound. Is molecular formula is this, and empirical formula is weight is this. Question number 6. This is very simple. This is also same. No need to do any calculation. Empirical formula is given as C8H6O4. So what will be the empirical formula? C4H3O2. Right. Understood? Is that clear? So that's it for this topic, beta.